we've just entered a road which is alongside Hagar Sharif. That's the entry point there. And we're walking towards Muhammad Ali Murtaza, his grave, who was buried amidst high controversy on Tuesday night. And he was picked up on Sunday, and from what I collect so far, he was tortured to death, and he endured extreme torture, including drilling in his legs, and many parts of his body was black and blue and red, of course. And the feeling is that he was probably killed in Jhelum. He was taken to Jhelum, and the administration of AJK does deserve some credit, I should say, for retrieving or getting the Pakistani army to return the body to the family of Muhammad Ali Murtaza. The intention of Pakistan's army and agencies was certainly to hush up this matter so that no criticism can be put in their direction. Assalamu alaikum. Ek khabar hai? Muhammad Ali Murtaza ni? Acha. راتی اس منگلارے راتی کتنے بجے جنازہ ہویا؟ منگلارے انہیں نہیں پتا اسی 11 بجے آیا پورے 11 بجے تے جنازہ مسجد کے اندر پڑھایا گیا تے کتنے بندے سن جنازے وچ؟ سونے کیا لگنے سن؟ معمول جنازے کتنے بندے سن؟ جی جنازے تقریباً جی کیا دسیا ہوں بس جتنا تک ہے 10 جی 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 اتنا اللہ تھا کوئی اندازہ آیا سب. اچھا تو پھر اتنا قبر پر کتنے لوگ آئے؟ قبر پر اشنرے میں سے کوئی اشنرے ایک دو اشنرے نال پڑھنے رکھی ہے. نہیں دفن انہوں نے وقت کتنے بندے سن؟ کافی بندے سن. ہاں بس ٹھیک سے درمیانے اتنے زیادہ نہیں. انتظامیہ نے بھی بندے آسن؟ جی 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 ہاں. پاکستان آرمی نے؟ انہوں نے والے نہیں تھے. کوئی بھی نہیں تھا. اچھا اور صاحب یہ اب کیا کہہ رہے تھے ہم، کیونکہ وہاں گھر سے ہو کے آ رہے ہیں تو وہاں پہ باہر کچھ ایجنسیز کی لوگ دیکھے آپ نے؟ تنویر صاحب میں سب سے پہلے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا سول سوسائٹی فورم سے یہ کام شروع کیا اور انتہائی گراس روٹ تک گئے، اور جو ہم نے آج صبح خاصا ٹائم ہم نے محمد علی کے در دیا اور بیٹھے ان کے والدین اور بھائی کے پاس، اور ان کے جو کزن ہیں دیگر جو ایک کشمیر کونسل کے ممبر بھی ہیں، محبوب صاحب بھی ہیں، وہ تو ایک سسٹم کے اندر ہیں، وہ تو ایک سسٹم کے اندر تھے ان کی گفتگو، لیکن کچھ محسوس ایسا ہو رہا تھا جی کہ کچھ جو ہے نا وہ کمٹمنٹ تھی ان کی آرمی کے احساس اداروں کے ساتھ خوفزدہ انہوں نے کیا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن پھر بھی آج دنیا جو سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ بات جو ہے نا کامیاب پاکستان آرمی نہیں ہو سکی. تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی کا کوئی قصور نہیں ثابت ہو رہا اس وقت تک. یہ عوام جو ہے نا ہر منہ سے یہ بات ہم نے سننے میں آئی ہے. تو محمد علی کے ساتھ جو بھی پاکستان آرمی نے کھیرٹا سیکٹر سیری چتر بارڈر پر جو سلوک کیا، گرفتار کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے نا پاگل کتا ہوتا ہے، پاگل کتے کے مترادف انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اور جیسے پاگل کتا کاٹتا ہے ایسے پاکستان آرمی نے اس کے ساتھ سلوک کر کے اتنا تشدد اتنا کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تشدد جو ہے نا
किस कौम के साथ हम जो है ना किसी कौम के साथ भी नहीं मिला सकते, इतना बदतरीन तशद्दुद किया। मोहम्मद अली जो है ना, हम आज मोहम्मद अली की कब्र पर घर से होकर कब्र पर भी खड़े हैं और जो है ना उनकी हमने जो नेट पर Evidence of torture, extreme torture वो over लोग देख रहे हैं कि उसके मोहम्मद अली जिस्म को जो उन्होंने मुर्तज़ा। ड्रिल से टार्चर किया, फिर उसको जो है ना वो जो है ना लोहे की किल मार कर जो है उसे मारा गया, फिर उसको उठाकर जेलम पाकिस्तान जेलम जो है ना वहाँ पर डिव जो है आर्मी का वहाँ पे लाया गया। तो फिर जो दस्तान हमें एक मिली है कि डीसी कोटली के ज़रिए जो है ना वो ब्रिगेडियर के ज़रिए बॉडी जो है ना वो कमिटमेंट के साथ ये इनके हवाले की गई कि आप किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक, पहले तो उन्होंने इंसान को कत्ल किया, फिर वो जो है ना आवाज़ भी उनको रोने धोने की भी वो इजाज़त नहीं दे रहे, ठीक है, जो महसूस हुई। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा जो है ना ये अलगनाक वाक़या है। ये पाकिस्तान आर्मी ने एक पागल कुत्ते की तरह जो है ना यहाँ पे इंसानों को काटना शुरू कर दिया है और ये प्रोपगंडे कर रहे हैं, कश्मीरियों को ये कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे लिए एक मैसेज है खुरेटा और ज़िला कोटली की कश्मीरी कौम के लिए कि जो इन्होंने हमारे साथ ये मोहम्मद अली की शक्ल में हमें मैयत दी है। ये उनके 2 त्यारे भी जो है ना वहाँ पे खुरेटा जो है ना आर्मी में आए उस दिन, ठीक है। तो हम ये आलमी इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों से कोटली में भी वो त्यारे आए थे। हाँ जी, फिर ये कोटली से मजम्मत जो है ना करते हैं इनकी पाकिस्तान आर्मी की, और फिलफौर यहाँ से हम नौजवानों से, कश्मीरी कौम के नौजवान बच्चे बूढ़े मोहम्मद अली के ख़ानदान हैं, चाहे कश्मीरी कौम वही मुतालबा करती है कि यहाँ से पाकिस्तान आर्मी जो है ना ये गैर काबिज़ आर्मी जो है इसको फिलफौर यहाँ से निकाला जाए। सही, ठीक है। अच्छा तैफूर साहब, क्या एजेंसीज वाले वहाँ पे खड़े थे बाहर जहाँ पे हम बैठे रहे? में भी हो सकते हैं क्योंकि ये काम उन्होंने किया है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर उस तरीके का ये मामला हाईलाइट ना हो, क्योंकि जिस तरह से अपना चौधरी साहब ने कहा है, जो इनके चाचा के बेटे हैं जो सारे मामला डील कर रहे हैं, चौधरी महबूब साहब या अमजद साहब? चौधरी अमजद साहब। ये महबूब साहब ने तो कहा जी कि हम कुछ दायरे के अंदर रह कर जो कुछ मामला कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा जी, हमें कहा गया था कि आप डेड बॉडी को उस जो एक संदूक थी लकड़ी की उससे बाहर नहीं निकालेंगे, हाँ। ठीक है, लेकिन हमने वो एग्रीमेंट को तोड़ा है, हमने बाहर निकाला है। फिर उन्होंने कहा था कि आप ये मीडिया पर इस बात को लेकर नहीं आएंगे, हाँ। तो ये भी जो एग्रीमेंट उन्होंने का हमारे साथ हुआ था उसको भी हमने तोड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो आज अखबार में भी आया है, लेकिन मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ इस वाक़े की कि यहाँ लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं इनके साथ किसी न किसी शक्ल में। तो ये एक 21वीं सदी में बहुत बड़ा अफसोसनाक लम्हा है। शायद हम तो कॉलेज स्कूल दौर से ही इनको गासिब कहते हैं, इनको कातिल कहते हैं और इन्हें कहते हैं अपने मुल्क में जाओ, लेकिन हगार का रहने वाला जिसका किसी सियासी तंजीम से कोई तल्लुक नहीं है और एक ऐसा नौजवान जो इतना शरीफ है उसके साथ इतना जुल्म किया गया। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के जो अलहदगी पसंद कुत्ते हैं, जो आज़ादी पसंद लोग हैं या इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करने वाले हैं, उनके लिए भी एक मैसेज में भी छोड़ा गया हो। जी जी जारी रखें। तो ऐसे अमल की भरपूर मजम्मत करते हैं कि दुनिया की कोई भी अगर कीमत आप इनके वालिदैन को देना, लेकिन उनको आप इस तरह का बेटा नहीं दे सकते। लेकिन मैं एज ए नेशन, कश्मीरी नेशन, एक कश्मीरी बाशिंदा होने के नाते से देखता हूँ कि जिस तरह ये वहाँ पर रोया होगा, तड़पा होगा, इसके आंसू, इसकी सिसकियाँ, इसकी आओ बका कि मुझे किस जुर्म में मुझे मार रहे हो। सही। तो इन जालमों को शर्म आनी चाहिए थी। हमारी एक लूली लंगड़ी आज़ाद कश्मीर एक सेटअप है जहां पुलिस है, हमारी इंतज़ामिया है, हमारे इदारे हैं। अब कम से कम उन्हें तो बताइए बंदा हमारे पास है, आप इसकी तस्दीक करके हमें दें। सही, बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और ये आलमी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि आइंदा इस तरह का अगर हमारी रियासत के अंदर इन गैर मुल्कियों ने कोई इक़दाम किया तो हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही। अच्छा फराज साहब, ये जो मिट्टी के नीचे हैं मोहम्मद अली मुर्तज़ा, मैं ये जो हुआ है वाक़या, और इस किस्म के वाक़यात 65 साल में न जाने कितने हुए हैं। देखिए तनवीर इसका क्या हतमी क्या बात है कि इसके नतीजे में ज़िम्मेदार शहरियों को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि दुनिया की किसी भी जगह कोई इंसान कितना बड़ा जुर्म ही क्यों ना कर दे, उसके लिए वहाँ कानून ज़ाब्ते होते हैं,
वहाँ अदालतें होती हैं, वहाँ पुलिस होती है, वहाँ की सिविल सोसाइटी होती है, जिसके ज़रिए वहाँ की अदालतें मौजूद होती हैं और उनके सामने पेश किया जाता है। दुनिया का कोई कानून और किसी जगह ये बर्बरियत ऐसी नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने जो यहाँ पे की है हमारे मासूम और इस मज़लूम नहायती शरीफ जो जिसने कभी आंख ऊपर नहीं उठाई और जो एक बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार और इंसान दोस्त जो मोहम्मद अली मुर्तज़ा थे, इनके साथ जो बर्बरियत की गई और इनको जो उठा के ले जाया गया और टार्चर सेल के अंदर रखा, और मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और इन्होंने इतनी बड़ी इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी क्यों की। मैं आपकी वसातत से, इस कैमरे की वसातत से बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को और जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हैं दुनिया भर की, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटीज़ को, अमेरिका की, बरतानिया की और जिस मुल्क दुनिया खित्ता ज़मीन पे जो भी मुल्क हैं, सबसे अपील करता हूँ कि वो इस जो ये खून बहा है और ये जो हमारे मासूम और मज़लूम के साथ ये जो बर्बरियत की गई है इस पर वो अपना एहतजाज करें और दुनिया को ऐसा खूबसूरत बनाएं जहाँ के इंसानी पर जो ये जुल्म और सितम ख़त्म हो सके। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। कुछ कहना चाहते हो? अच्छा सुने कुछ करीबी सुन पोतरा उसका पैगाम दुनिया दे। हमारे यहाँ ने ना बड़ी बेठाती है अच्छा और बहुत नहायत शरीफ आदमी। अच्छा समझ नहीं सी इना कोई की समझ ये गल नहीं। हो ही नहीं सकना सी इन्हें ये मारना नहीं सा चाहिए, जी इन्हें कम से कम इसको पता करना चाहिए। सही इन्हें एकदम उसकी मारी मारी जो हर जगह छेक किते ने सही वो ना अंदर सारा चीज बारी बाहर कढ़िया ने असा नहीं तकिया जी, तबाह असा ये कर तकने दिया ना था। दिल भी नहीं करना सा कि असा सोचने से इन्हें ना शायद हक बोलना है चाहिए, बनना असा सा असा उसकी चीज तकी बाहर ना सकने करना। लगी होना की क्या नाम सुनो? मोहम्मद जमान ठीक है। उसने दोस्त नहीं मारे मामू असां की क्या करना चाहिए कि इस किस्म ना वाकया किसी और बच्चे ना मारे ना हो सकना और बच्चे ना हो सकना ए किस क्या होना चाहिए ना कि इस किस्म ना वाकया फिर कदा दरपेश ना हुआ। इसना अदल होना चाहिए ना नहीं अदल इंसाफ तुम क्या चाहते हो कि आर्मी इतने पाकिस्तान नहीं रहनी चाहिए या इतों वापस जानी चाहिए? वापस जानी चाहिए हैं? जानी चाहिए नहीं हुन तक कोई क्या लोड़ है सही। कि जो असें असें इधर फायदा ना चले गए। दे फायदा असें ना दे फिर असें नुकसान क्यों बचाया साढ़े बंदे तुम्हारे ये ऐसा ही कोई देने दे नहीं पाकिस्तान वाले बल्कि साढ़े को धुना खाई जाने खाई सही, जाने सही, सही। बिल्कुल बोरे भरी दे नोटों ने डैम देने। साढ़े ऊपर बनाए हुए ने तो उसनो असने को इतना फायदा चुकने लकड़ी सारी इस्तेमाल करने पाकिस्तानी तक कोई जगह लकड़ी है कोई एरिया है लकड़ी वाला जी ते ये कश्मीर ने लकड़ी है पाकिस्तानी जानी बकाया डैम ना डैम जड़ा उन्होंने तरबेला डैम खत्म हो गया सारा मंगला डैम ने बिजली को ज़्यादा इस्तेमाल करने सही तो उन्होंने को अपना कोई वसाइल है नहीं था वैसे ही उत्थे दहशतगर्दी ने इतने हमले होने उसकी संभालो गिरना लगा हुआ इतना उल्टा में कश्मीरी परेशान करने लगे सही सही है। तो क्या आने कि बाइज्जत तरीके नाल क्या पैगाम होना वास्ता क्योंकि लड़ाई तो ना करी सकने देखो ना ये बच्चा आसना इस दुनिया तो गया ठीक है इससे पहले कितने बच्चे आसन ने जाना इस तरीके नाल जाना गए ठीक है तो बाइज्जत क्या तरीका होना चाहिए जी उन्हें यह मैसेज आ सुनो कि इन्हें या तो इन्हें की सजा होन क्या हो सकता यानी कि उन्हें बंदियां की आने जी बिल्कुल सजा हो नहीं सकनी मुल्क है छोड़ो दफा होन या तो या कोई सजा है जिस से बेहतर से कोई सजा दी जाए इन्हें आज तक कुछ की सजा नहीं देती चलो जी अगर आप ना इंडियन सजा देने उथा जरा जुल्म करने ना एक कोई सजा देने ना नहीं अगर ये सजा नहीं देने था फिर कम से कम ऐसा कि कोई ऐसा मसला होना चाहिए ना ऐसा कश्मीर हमारे यहाँ जरा कि मुफीद है ऐसा नहीं बंदे भी ना मरन तो ऐसा भी ये आज़ाद करन बस कर सही बिल्कुल ठीक है ऐसा आज़ाद होंगे बिल्कुल सही बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी तुम कुछ आना चाहते हो बस बाकी उन्हें या जितना अच्छा क्या हो कि ये जो सारा इलाका जो सो वक्फ किया हुआ इतना अगार शरीफ वास्ता है वो इसा फैमिली ना इसा फैमिली ने ज़मीन है और इसा फैमिली नाल ये जरा जुल्म होया जुल्म हो अच्छा ओहो सब फैमिली सही ठीक है उसने वक़्फ़ कितनी जगह ये सब दक्षी वक्त सारा इलाका ये सुने क्या लगने सुनो ये दो तरह लगना दो तरह सुनो हाय हाय ठीक ये नाना उन्होंने ठीक। उनके वो नाना। बहुत शरीफ बंदा था और वो सीधा सादा बंदा
ٹھیک اوکے ہمارے کم سے کم تھی